Good morning, student. I, Kinnari Dave, again welcomes you all for Standard 12 Chemistry, Chapter number 10, Hello Alkane and Hello Arene. In today's video, I am going to explain you about the polyhalogen compound. Now student, before going to our compound polyhalogen today's video, as per our trend, we'll just revise the whatever we have studied in the last videos. So first of all, we are going to study about the definition of enantiomer. What is enantiomer, student? Enantiomer, the stereomers which are non superimposable. शॉर्ट में हम उसकी टर्म याद रख देंगे. So the stereoisomers which are non superimposable, जो एक दूसरे को एग्जैक्टली पूरे के पूरे फिट नहीं बैठते हैं in their mirror image. In their mirror image. So this is the first definition of ours. Now what is the second definition we have studied? What about of the enantiomers properties? Properties के लिए they have identical physical properties. So their physical properties are same because as I said they are the one compound. Their physical properties are same because they have just mirror image. एक दूसरे से थोड़े से वो अलग हो गए हैं पर वो कंपाउंड एक ही कंपाउंड है. फिजिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस यू नो स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा. बट देयर स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइन. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. स्पेसिफिक रोटेशन is equal in magnitude, but the sign is different, that is D or plus, or we can say that if it is a levorotatory then L and minus. The third one terms which we understood, that is the racemic mixture. What is known as the racemic mixture, student? A mixture containing the equal amount of two enantiomer. So here the main term is equal amount of two enantiomer. So racemic mixture means the mixture which is of equal amount. किसका mixture student here? Two enantiomer. So mixture of two enantiomer they does not show any optical activity. Not show any optical activity. So here half of the total molecule rotates the plane of the polarization towards the right through the certain angle and other one towards the left hand side towards the certain angle. So here that's why we can say that the angle of rotation means the third characteristics of this is the angle of rotation, that is mostly 0. So angle of rotation is same. So net optical rotation is equal to 0. And that's why it is denoted by
DL or plus and minus. And the fourth term which we understood, that is the racemization. So the process of this conversion of this enantiomer. So racemization is the process. Racemization, that is the process of conversion of enantiomer. किसको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट? सो enantiomer को racemic mixture में into racemic mixture. That process is known as racemization. So this is the third term. Now fourth term which we are going to understand, that is the inversion and racemization. So inversion का मतलब क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं. So inversion means the substance change to levo from dextro, means inversion. ये वर्ड में वैसे आपको बहुत इजीली ही याद रहेगा. सो हियर वी कैन से दैट द डेक्स्ट्रो चेंजेस इनटू लीवो एंड देन वाइस वर्सा. लीवो चेंजेस इनटू डेक्स्ट्रो एंड द नेक्स्ट टर्म इट इज रेसिमाइजेशन. द नेक्स्ट टर्म इज इट इज रेसिमाइजेशन, जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ. एंड देन विल गो विथ अवर टुडेज टॉपिक पॉलीहेलोजन कंपाउंड. स्टूडेंट, here you can say that racemization, it leads to the formation of equal amount of D and L forms of the compound. So the racemic mixture is formed and that process is known as racemization. Here you can see that I have this compound which is a chiral carbon, this bond which is at the back side and this X in the front side. So here what happens, student? Here I am getting the two product. One product is the B product. If I'll get the B product, then it is a invert product. आप देख सकते हो ये H जो है वो यहाँ पर राइट साइड में था, जो H यहाँ लेफ्ट साइड में चला गया. So that's why it is a inversion. And now if I'll get this product, then it is known as retention. That is, retention is, here you can see that the same condition, there is no change in the product side. But if I'll get the mixture of these two, if both the mixture, then it mixture is known as racemic mixture. Then this mixture, this product is known as racemic mixture. So you understand these all the terms which we have studied in our last topic. Now in this video we'll start our today's topic, and that is a polyhalogen compound. So first of all, what is the polyhalogen compound? The carbon compound which contain more than one halogen atom. So simple definition: carbon compound with more than one halogen atom. More than one halogen atom, that is known as the polyhalogen compound. And generally this polyhalogen compound are useful in agriculture, industry also, agriculture also and industry purpose also. बहुत ही पुराना जो इंसेक्टिसाइड है DDT, वो पोलीहेलोजन कंपाउंड है. और इसका यूजेस अगर हम देखते हैं तो डाइक्लोरोमीथेन, जनरली इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट
एज अ पेंट रिमूवर। सो उसके यूजेस जो है वो है सॉल्वेंट, एज अ पेंट रिमूवर, डाइक्लोरोमीथेन। उसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज एज अ मेटल क्लीनिंग, फिनिशिंग। तो ये सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। उसके अलावा क्लोरोफॉर्म है जिसे हम जानते हैं कि वो एनेस्थीसिया में यूज़ किया जाता है, तो दैट इज़ अ क्लोरोफॉर्म ऑल्सो। जनरली इट इज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑल्सो। द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म, it gives the harmful effect to the nerve system. That is also the polyhalogen compound. Then the third polyhalogen compound, that is iodoform student. Iodoform का जब हम टिंचर आयोडीन यूज करते हैं तो दैट इज द फॉर्म ऑफ आयोडोफॉर्म. सो आयोडोफॉर्म ऑल्सो यूज एज एन एंटीसेप्टिक, but the antiseptic properties are due to the लिब्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन. ये बात यहाँ ध्यान में रखने की है कि आयोडोफॉर्म जो है उसके पास में कोई ऐसी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, बट व्हेन आयोडोफॉर्म लिबरेट्स फ्री आयोडीन विच possess द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी. So this all are the polyhalogen compound. One more polyhalogen compound, it is very useful, that is tetrachloromethane. कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हम उसे कहते हैं. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 that is produced in the large quantities for use in the manufacture of refrigerant and propellants of aerosol can also, and it is also used as a feedstock in the synthesis of a chlorofluorocarbon. तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर स्टूडेंट इसकी भी हार्मफुल इफेक्ट्स है. देयर इज सम एविडेंस ऑल्सो दिस कॉज द कैंसर. तो ये कैंसर भी स्प्रेड करता है, तो दिस इज ऑल्सो द हार्मफुल. एंड मोस्ट कॉमन इफेक्ट इज डिजीनेस होती है, हेडेक होता है, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह होता है. तो ये सब जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड या तो टेट्राक्लोरोमीथेन की साइड इफेक्ट्स है. अब जो है मेन जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लेते हैं हम, और क्लोरोफॉर्म का किस तरह से वो इफेक्ट करता है. तो सपोज CHCl3, अब इसे हम ये सब जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड है उसे हम फ्रियॉन के नाम से, जो CFC है फ्रियॉन के नाम से भी जान सकते हैं. अब इसकी अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो यहाँ हमारे पास में फॉस्जीन गैस प्रोड्यूस होता है प्लस 2HCl. So this is our phosgene gas which is very poisonous. और COCl2 का स्ट्रक्चर तो C डबल बॉन्ड O और Cl. This is the structure of COCl2 which is very important. तो ये रिएक्शंस जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आप ध्यान रखोगे. फिर उसके बाद में सेकेंड जो है वो मोस्टली आस्क क्वेश्चन है बोर्ड की एग्ज़ाम में, MCQ में, उसमें भी जो मैंने बताया था बहुत ही पुराना इंसेक्टिसाइड्स हम जिसे DDT के नाम से जानते हैं. तो DDT का फुल फॉर्म पूछते हैं एक तो पहला D के लिए आपको लिखना है डाई क्लोरो. फिर दूसरे D के लिए आप लिखोगे डाई फिनाइल, और T जो है उसके लिए आपको लिखना है ट्राई क्लोरो इथेन. अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट. जिस तरह से हमने नाम लिखा है उसी तरह से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. सो सबसे पहले हमारे पास में है डाई क्लोरो, तो ये हमारा सेंट्रल कार्बन है और डाई फिनाइल ग्रुप है. तो यहाँ हम पहले दो बाजू में फिनाइल ग्रुप को
बना देते हैं। तो ये हुआ फिनाइल ग्रुप जो हमने सेंट्रल कार्बन से अटैच किया हुआ है, और उसके साथ में क्लोरीन है क्योंकि डाइक्लोरो है, तो ये हो गया हमारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल। अब आपके पास में बताया गया है ट्राइक्लोरोइथेन। ट्राइक्लोरोइथेन मतलब ये आपका सेंट्रल कार्बन, उसके साथ में H जुड़ेगा तो उसकी 2-3 वैलेंसी हो गई, और यहाँ है ट्राइक्लोरोइथेन मतलब CCl3। तो ये हो गया आपका ट्राइक्लोरोइथेन। ये है स्ट्रक्चर। जनरली मोस्टली पूछा जाने वाला फुल फॉर्म DDT का, तो ये ध्यान रखोगे और बहुत अच्छे से आप उसको याद करोगे। अब जो मैंने आपको बताया CFC फ्रियोन्स, फ्रियोन्स का मतलब क्या होता है ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सो द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन, CFC फुल फॉर्म आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड of methane and ethane. They are known as freons. Methane and ethane collectively are known as freons, and they are extremely stable, even अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव एंड इजीली लिक्विफेबल गैसेस। तो इसकी प्रॉपर्टी अगर हम जानते हैं तो प्रॉपर्टी जो है वो है स्टेबल कंपाउंड होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं एंड नॉन कोरोसिव। इतनी सारी गुड प्रॉपर्टी है उसकी। इवन इजीली लिक्विफिएबल ऑल्सो। अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है उसमें से आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला है उसके कॉमन नेम, उसका नेमिंग पूछा जाता है जनरली कि किस तरह से उसे नोमेनक्लेचर करते हैं, और फ्रियोन्स की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो हमारे पास में ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है जब वो हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में इन प्लेस ऑफ एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो आपका यहाँ बनेगा CCl3F प्लस HCl। उसी तरह से अगर हम हेक्साक्लोरोइथेन लेते हैं सो C2Cl6 हेक्साक्लोरोइथेन, उसकी भी हम अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में सेम रिएक्शन एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं तो यहाँ हमें मिलता है फ्रियोन्स C2F2Cl4 प्लस 2HCl। अब स्टूडेंट यहाँ पर उसके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, XYZ करके आपको फ्रियोन्स दिया है और उसका नाम आपको बताना है। तो किस तरह से हम नोमेनक्लेचर करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ सिखा देती हूँ। उसके लिए कॉमन नेम जो है हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर। सो कॉमन नेम ऑफ फ्रियोन के लिए मैं यहाँ आपको शॉर्टकट बताती हूँ, C, B एंड A। आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो C का मतलब होता है आपको लेना है जो भी कंपाउंड दिया है उसमें थे, तो C आप लोगे C-1 फ्रियोन के अंदर से जितने भी कार्बन है वो कार्बन में से 1 माइनस करना है। अब B जो है, आप B को कंसिडर करोगे हाइड्रोजन, B मतलब हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन जितने भी फ्रियोन्स में दिए हैं
उसमें से हम H+1 करेंगे और आपका A जो है वो है आपका फ्लोरीन, तो वो उसे आपको टोटल एज इट इज रखना है। या तो हम यहाँ पर A को कंसिडर कर रहे हैं टोटल नंबर, A इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं F। अब एग्जाम्पल लेके मैं समझा रही हूँ। सबसे पहले हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हमारा CFCl3, CFCl3। इसका नाम कैसे करेंगे? फॉर्मूला है आपके पास में C-1, तो यहाँ पर कार्बन CFCl3 में 1 कार्बन है, तो 1 - 1, तो यहाँ आंसर मिलेगा 0। आपके पास में यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए आपको करना है H नहीं है, मतलब 0 + 1 = 0। और फ्लोरीन कितना है स्टूडेंट? 1 है, तो आप फ्लोरीन के लिए लिखोगे 1। तो अब आपके पास में फॉर्मूला है CBA, सो ये हुआ आपका C, ये है आपका B और ये है आपका A। तो CFCl3 का नाम क्या रहेगा? यहाँ पर आपके पास में है स्टूडेंट यहाँ 0 + 1 = 1 एंड यहाँ पर भी है 1, तो इसका नाम हुआ आपका फ्रियोन 1,1। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, CF2Cl2 लेते हैं, CF2Cl2। अब सबसे पहला है C-1, मतलब हमें लेना जो है उसमें कार्बन कितना है? 1 है, तो 1 - 1 करोगे आप, तो उसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन आइटम आपके हो गए 0। हाइड्रोजन एक भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको करना है 0 + 1, तो B = हो गया 1। अब यहाँ पर आपके पास में जो फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन के लिए आप कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पर ये आपका क्लोरीन है, तो फ्लोरीन या क्लोरीन जो भी है ये कितने हैं आपके? तो ये हो गया आपका 2 है यहाँ पर, तो A = 2। सो इसका नाम हुआ फ्रियोन 1,2, फ्रियोन 1,2 ये उसका नाम हुआ स्टूडेंट। तो ये आपको पता चला किस तरह से नॉमेनक्लेचर करना है। वन मोर एग्जाम्पल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, दैट इज C2F2Cl4। अब आपको याद है क्या करना है? कार्बन को -1 करना है, तो कार्बन -1 2 - 1 तो = 1 रहेगा। हाइड्रोजन +1 है, यहाँ हाइड्रोजन एक भी नहीं है, इसलिए 0 + 1 तो 1 रहेगा। और A मतलब आपका हेलोजन एटम है, तो हेलोजन एटम जितने हैं उतने के उतने आपको यहाँ पर रखने होते हैं, तो CBA। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, तो फ्लोरीन कितना है आपके पास में? 2 फ्लोरीन है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 फ्लोरीन। ये A जो है वो आपके नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम है, तो इसका नाम क्या हुआ स्टूडेंट? फ्लोरीन 1,1,2। क्लियर हुआ स्टूडेंट? इसके ऊपर से आप कोई भी नोमेनक्लेचर कर सकते हो। मैंने आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताई है यहाँ पर नोमेनक्लेचर के लिए। वन मोर एग्जाम्पल विल टेक एंड लास्टली देन विल गो विद द properties and uses of freons. Here C2F5Cl। अब C2 कार्बन 2 है -1, तो कार्बन 1 हुआ, हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो 0 + 1 मतलब 1 हुआ, और फ्लोरीन है 5, तो यहाँ पर आपका नाम आएगा फ्रियोन 1,1,5. This way you can write down the nomenclature of freons. Now what is the exactly properties of freon? So they are colorless, odorless,
और आगे मैंने आपको बताया नॉन रिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, ये सब तो है ही स्टूडेंट उसकी प्रॉपर्टी. बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज जनरली CF2Cl2 का वेरी लो होता है, and as I said they can easily convert into liquid and so they are used in, ये बहुत important है, so they are used in AC and fridge as a coolant. Even they were used in a aerosol also. Aerosol in plane and rocket. तो ये उसकी प्रॉपर्टी की वजह से इसके ये जो दो यूजेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एंड ये उसका बहुत ही जो खराब असर वी कैन से दैट इज अ ओजोन लेयर डिप्लेटेशन, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू CFC. बिकॉज ये सबके लिए वो फ़ायदेमंद है पर वो नॉन रिएक्टिव है, वो नॉन कोरोसिव है, तो इसकी वजह से मेन CFC कॉज ओजोन लेयर डिप्लेटेशन. ये उसकी बैड इफेक्ट है. Okay students, now today you understand what is the polyhalogen compound, and along with that we have studied the last videos revision work also, and the nomenclature of freons also I explain you. This topic is very important for your MCQ exam. Thank you so much students, and your comments are always welcome on my mail ID. Thank you.